Hello, everyone. My name is Nida Kazmi. Welcome back to episode 3 of Dil Se Podcast. I am a project manager by day, and I do psychology by night, and I'm also a classical singer. Hi guys, I'm Ayan Aga. I'm a holistic healer, a practitioner and coach. And this is... Assalamu alaikum everyone. I'm a seer of Who, and I'm a believer of Who. I'm a lover of Who, with a sprinkle of Who's energy, which is Reiki, Islam, and my paintings. Allahu, Allahu, Allahu. And today, our topic is very interesting, since we already mentioned in the last episode that it's going to be about how to find our purpose. Yay! Yes. I'm excited. Finally, we have arrived. Yes. And I think Mahi, I would start with Mahi. Mahi, go ahead, please explain. I know what your experience is. How did you find your purpose? Or still figuring out, however, I think our purpose evolves as we transform as human beings. And I think finally a bigger purpose in picture सामने आ गई है कि क्या करना है. But छोटी-छोटी चीजें तो चल ही रही हैं साथ में. And मैंने पहले ही mention किया था कि मैं तड़प रही थी टेक्निक बताने के लिए कि how you find your purpose. So I want to start off with that. I found out this beautiful technique in the Celestine Prophecy, जो एक book है. Author का नाम मैं भूल चुकी हूँ, but वो रखी हुई है. और उसमें जो है what you need to do is, I'm really, ये तो फौरन हम घुस गए टेक्निक में, but okay. What you need to do is understand कि if you see your life as a journey, ठीक है ना? जब से आप पैदा हुए हैं और अभी तक, what have you been preparing for? ठीक है? Preparation जो हो सकती है वो आपकी एजुकेशन में भी हो सकती है, आपकी लाइफस्टाइल के थ्रू भी हो सकती है, या आपके जो शौक थे वो आ रहे थे, they were bubbling up, उसके थ्रू भी हो सकती है, ठीक है ना? तो एक तो ये है तरीका कि आप पूरा देखें कि what have I been learning? मैं इस घर में क्यों पैदा हुई, मैंने क्या खोया, क्या पाया, ठीक है ना? What did I bring forward and who am I today? Because you are, what your journey is like, ठीक है? वो आपको बनाती है and makes you and forms you into a place and a person that you are, destined to be. And then उसके बाद जब आपको पता चला जाता है कि who you are, उसके बाद उसको आप आगे लेकर चलते हैं and then you serve other people, ठीक है ना? But ये process जो है ना, वो ये है कि you take your parents, ठीक है ना? Your parents are basically your role models, your guides, your angels in this lifestyle, life. उनसे जो आप सीखते हैं, उनकी जो एनर्जी आप लेते हैं, उनकी जो मिजाज आप लेते हैं, वो जो है you make 2 columns, ठीक है ना? एक पेपर पे लें, आप लिखें my dad. एक साइड पे आप लिखें what you like about him, the characteristics of your father. And then दूसरी साइड पे आप लिखें all the negative things that you didn't like about him, लेट सो के उठते थे या गाड़ी स्लो चलाते थे, for example, and positive में, go getter and, money minded and, this and that. So when you do that, take another sheet, उसमें आप अपने मदर के बारे में लिखें, the good things, excellent cook, singer, caretaker, blah, blah, and the other side, she didn't care about herself, उनकी self love नहीं था, maintenance नहीं थी, सारी चीजें जो होती हैं. And then once you're done with that, आप दोनों चीज आपके सामने रखें और सर्कल करें कि आप में क्या क्या आया है इसमें से, ठीक है? ये जब आपने कर लिया है, उसके बाद जो चीजें आप देखेंगे कि आपको पसंद नहीं आई हैं जो आप में नहीं हैं, that is what you worked on till now not to adopt. ठीक है जी, ये हो गया. अच्छा, और जो चीजें आपके पास है नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल उनकी आपने ले लिए, लेट उठने की आदत या सुस्ती या ये चीजें, this is what you're working on, this is your purpose that you put on yourself to work on, ठीक है ना?
तो ये आपके सामने जो है ना, ये ऑन पेपर सामने आ जाएगा कि व्हाट योर लाइफ पर्पस, व्हाट यू टिल टुडे, किस चीज में आपने अपने आप को ए स्टार कर दिया है और किस चीज में आप आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आपकी वो हो गया, यू नो, मे बी कह सकते हैं कि योर कैरेक्टरिस्टिक्स, योर लाइफस्टाइल जो भी है। बट इफ यू लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर, ठीक है ना, आप कहें कि मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल कोचिंग करनी है या यू नो मुझे फला फला चीज बननी है, वो जो है वो कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड इट, ठीक है। आप उसके बर्निंग डिजायर पीछे से देखेंगे कि क्या आ रही है, डू यू हैव दैट थिंग इन यू, कि आप 2 दिन करेंगे और तीसरे दिन आप छोड़ देंगे, वो तो बिगर पर्पस नहीं हुआ फिर, ठीक है। समथिंग दैट कीप्स यू पुशिंग, अंदर से आपको आता है करो यार, करो, करके देखो क्या पता लॉटरी लग जाए, यू नो, फॉर एग्जाम्पल। एंड व्हेन यू डू इट, 2 चीजें होती हैं, या तो पता चलता है कि दिस इज नॉट फॉर मी, और ये पता चलता है कि दिस इज फॉर मी, ठीक है। तो ये 2 जो चीजें हैं वो बेसिकली दे डिटरमिन योर ग्रोथ एंड दे डिटरमिन योर पर्पस। अच्छा, पर्पस का एक और भी सीन है कि टू मैनिफेस्ट और पुट योर पर्पस इन फ्रूइशन यू नीड टू विजुअलाइज इट, ठीक है ना। आप do you see yourself there, or is it something that you don't think is highly unlikely of you doing it, or ये, but इसकी भी 2 तरह की चीजें हैं कि ये इसको निदा अच्छी तरह एक्सप्लेन करेगी कि हो सकता है या नहीं हो सकता, how to you know visualize and manifest, yeah, all that, but बचपन से अगर आपको ये पता था 4, 5, 6 साल, 7 साल में, अगर आपको अंदर से आवाज आती थी ना कि you're made for something big, then you will be something big, क्योंकि your subconscious is telling you that and preparing you for that, regardless of your struggles in life, and you have that subconscious belief, आपके बचपन से आ जाती है कि यार मैंने तो कुछ बनना है by hook or by crook. We don't want the crook part, but you know, keep the hook part, keep it you know in your hands, strive for it. लोगों को usually education में होता है कि you know when they have that urge के मैंने बड़ों के डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, तो उनके लिए तो बड़ा आसान होता है, डॉक्टरी की पाथ ली किसी भी तरह, लोन उठा के या कुछ करके और जान लगा के एग्जाम दे के मर के डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है ना। बट जो लोग जो होते जिनको ये नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी टू सी व्हाट दे सी देमसेल्व्स एज, इज बिकॉज बचपन में उनको ऐसी कुछ चीज सामने नजर नहीं आई, दे कुडंट हैव अ रोल मॉडल like that for themselves, so they kind of don't understand their bigger purpose, or they don't have that vision, that goal, that ultimate purpose in life. Like मेरे साथ था कि मेरी 3 महीने डॉक्टर हैं और मैं अपने आप को डॉक्टर नहीं देखती थी, और मैं अपने आप को दिखती नहीं थी, मैं कहती थी मैंने वो करना जो ये लोग नहीं कर रहे, उल्टा कि मैं I am made for a bigger purpose, not to become a doctor, because every second person was a doctor, right? So that's not a big purpose for me, but these days it's a big purpose. मजे की बात है कि in a way, you know, holistic doctor तो हो आप. That's true. Yeah, you know. ये है कि जब मैं छोटी थी ना तो डैडी कहते थे मेरी 4 बेटियां डॉक्टर बनेंगी, ठीक है ना। वो अलग बात है कि वो अब मेरी डॉक्टरी को they don't take as a doctor, as a healer, क्योंकि वो समझ से सोच से बाहर है, but बीच में मैंने हॉस्पिटल में काम किया था तो वो हो गया था कि अच्छा चलो ठीक है, अब सब वो है मेडिकल फील्ड में है, एडमिनिस्ट्रेशन में जब मैं थी, बट दैट इज लाइक कुछ जो पेरेंट्स के जो कभी कभार मैं बोलूंगी कि some parents do instill purpose for you, ठीक है ना, but that does not determine कि that purpose will resonate with you, ठीक है ना। कि अगर वो बचपन से पुश करें कि डॉक्टर बनेगा डॉक्टर बनेगा डॉक्टर बनेगा डॉक्टर बनेगा, and your inside is saying hell no,
then it is hell no. It's not your purpose. It's It's their not your, purpose. Yeah. it's not your purpose. Yeah. ठीक है, but कुछ लोग खुश करने के लिए भी बन जाते हैं, but they're not happy. And if you're not happy with what you become, that's not your purpose in life. You're miserable in life. You're hating every second of it. And if you're not hating every second of it and loving every second, and the seconds are slipping by, that is your purpose. That is where your heart is. Your heart is where your purpose is. ठीक है? अब मैं निदा को बोलूंगी कि निदा प्लीज लेकिन माही तुमने ये नहीं बताया कि what is your purpose? यार सबके पर्पस तो डिफरेंट होते हैं ना. हाँ लेकिन तुम अपना बताओ. Purpose is to heal. My purpose is to give people a different life, transform their mental blockages, and किसी को health की तरफ आना है तो वो health की तरफ लाएंगे. उनका mindset change होना है या उनकी healing जो है उसको spirituality को transform करना है. That is where the coaching is. That's where the purpose is. Yeah. तो तुमने जो एक बात कही थी कि जिससे मुझे याद आया कि जब मैं छोटी थी, it was very clear as day to me. Two things. कि I am here for much bigger things. और मैं ये बात कर रही हूँ जब मैं 4 साल की थी, 4-5, and I clearly remember the memories. I remember the things that I've said. And as we go on with the episodes, I'll share what some of those stories were. और दूसरी चीज जो ये थी जो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट थी कि I want to be a teacher. और जैसे जैसे बड़े होते गए, there's noise from parents and society कि like doctor बनो, lawyer बनो, ये बनो, business करो ये. और फिर दूसरी तरफ से आपको noise मिल रहा है from your own personal, like you're trying to grow and you have your own personal conflicts. This. फिर अब मैं अपनी life को देखती हूँ and I'm like, and of course I didn't want to be a teacher in the classic sense. I'm like, nah, isme koi, even what I would be teaching is not something I want to teach, like typical stuff, or it's a tough career with no reward. Ab main apni life ko dekhti hu and I'm like, I'm a teacher. That is who I am. Like everywhere I go, मतलब teacher बनने का मतलब मेरे लिए या healer बनने का मतलब तुम्हारे लिए माही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप like एक silo track में अब healer और teacher के track में आप बैठ गए. तुम जहाँ जहाँ जाओ, तुम दावत में हो, family में हो, public में हो, grocery store में हो, मैं like हम लोग अपनी job पे हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, खानदान के साथ हैं, तुम healer हो और मैं teacher हूँ. हर available मौके पे that's who we are as the moment demands it, not as the event, is asking us to be. So I would say that that was what was triggered. And then I'm going to go back to like how I found my purpose, right? मैं बहुत believe करती हूँ कि जब हम इतनी नौबत पे पहुँच जाते हैं कि दिमाग बिल्कुल खिसका हुआ होता है और भरा हुआ होता है with all this extra information, the first thing you have to do before finding your purpose is you have to stabilize. इस पागलपन से निकल के, और बहुत सारे लोग बहुत खराब सिचुएशन में भी होते हैं, they're in bad relationships, bad finances, they have to stabilize emotionally, physically, financially. और इन सब चीज़ों के लिए this is why things like Hay House events, spirit science videos, all of these things are immensely helpful. कि आप अपने आप को, और इसमें टाइम लगता है. It took me about 2 to 3 years to like actually just stabilize enough कि अच्छा अब मैं इस जगह से आगे का सोचूं, आगे like a springboard. फिर उस चीज के लिए मैं I have a mentor, Michael Bernoff, who I've worked with for years now. It really helped me learn like mental techniques to deal with myself and with other people. And it's like by and far the biggest gift I've had in my life. Uske baad phir, when you finally get to the point that now I've come out of my situation, I stabilized, I sprung off the springboard, मैंने कुछ accomplishments की अपनी life में जो मुझे करनी थी, whatever it is for you, getting out of the bad marriage, paying off your debts or losing the weight, whatever the case may be, आप में confidence आने लगता है कि अच्छा मैंने अपनी कुछ accomplishments कर ली हैं, I am capable, I am
able to move forward, मुझे progress की खुशी कभी अब experience हो चुका है. उसके बाद फिर you can really get into the deeper, I would say spiritual practices, because now you've gotten rid of the gun and you're trying to come back to who you are. Now, by the way, is there a shortcut to all of this? Absolutely there is. लेकिन हम में से किसी के पास इतनी जैसे कहते हैं इतना सब्र नहीं है कि हम बैठ के एक 2-3 घंटे की meditations करें एक every other day, or nor do we have the time. But that would be the shortcut. I'm sure somebody's wondering about this. उसके बाद फिर आप अपनी deep spiritual practices कर सकते हैं. So my trigger was at a Tony Robbins event जिसमें oneness healers आए हुए थे और ये India based treatment है. And famous celebrities are healers like Melanie Griffith. She was there also. And मुझे जो याद है कि उस healing में जो मुझे instantly जो मुझे अपनी जिंदगी की like मुकम्मल picture जो नजर आई है पीछे की करंट मोमेंट की और आने वाले कल की एक इमेज में जो मुझे नजर आई है, उसमें मैं जब निकली उसमें से like I was so grateful, like मैं पूरी तरह से रो रही थी because I was so grateful. I understood कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, right? And like that everything had a reason and a purpose for it. But you that doesn't mean कि आपको हर accuracy के साथ हर आगे आने वाली चीज की एक like vision होना जरूरी है. Like you don't have to know everything. तो वो जो एक सुकून आ जाता है ना आप में, या तो उम्र के साथ या एक्सपीरियंस के साथ कि you're like, okay, I have done enough, I am enough, and now I will do what I need to do for the next, like, इतना बस के अगले 5 steps, अगले 5 कदम और आगे वाली चीज आती रहेगी. And so finally I got to the point, I'm like, okay. And so where I am now, I don't really like pursue almost anything except unless I'm enjoying it. As you guys know, तुम दोनों की encouragement से, तुम लोगों के affiliation से, I started my classical singing. ठीक है, उसमें I have no idea. Am I trying to be a celebrity singer? God, no, man, that is not who I am. But it will take me somewhere. ठीक है, 100% guarantee है. It's gonna take me somewhere. I try to inspire everyone around me who I know is open to it. Mere co-workers. There's a girl that I met through her mother in Islamabad last year because her mother was my tailor. For really nice, and they're bespoke tailors in Islamabad, by the way. They do the most gorgeous gowns and custom jackets and suits. And मुझे इस लड़की के बारे में A to B नहीं पता था, और महीने गुजर गए. I started to discover how spiritual she is, and how she was like putting up recipes on Instagram के 2 core ingredients are नियत साफ होनी चाहिए, right? और आपका मतलब आपकी एनर्जी सही होनी चाहिए जब आप खाना पकाएं, otherwise आपका खाना अच्छा नहीं निकलेगा. And I was like, she just taught me something huge, right? But at the same time, I'm giving her inspiration. I'm propping her up because she's doing this thing like brand new or screen. And that's enough. It doesn't need to be on some celebrity platform ke, I'm inspiring people off of a stage and I'm in the magazines and news and everything for this to count. So that's where I am now. Now, a couple of things I want to close the loop on. Jo Marine ne kahe the, phir I'm going to pass it over to Bittu. Which is एक तो manifestation की बात की थी माही ने कि how to visualize something and to manifest it. There I do have a belief कि देखो एक तरीका हर एक लिए काम नहीं करता. जो मैंने एक modality में सीखा है, it's called human design. Human design में कहा जाता है कि कुछ लोगों के लिए, and you find out when you pull out your chart, कि कुछ लोगों के लिए एक बड़ी precise visualization या written चाहिए होता है manifestation के लिए. I am that way. The minute I write things down to like a very precise degree, my timeline is about 4 days. 4 days और वो चीज़ मेरे हाथ में आ जाती है. ये मैंने 6-7 मरतबा देख लिया है माशाल्लाह से. कुछ लोग होते हैं that
they have to let it out, leave it out to the open. They cannot be precise. It will not manifest for them. So for those people, I would recommend, and either way, actually, for either crowd, the best thing those people can do is to emotionally feel into that thing that they want to manifest. ज़्यादातर लोगों को घर, गाड़ी, पैसा, दौलत, नौकरी, body, this is what people typically go for, and it's fine, it's normal. उसके लिए आपको feeling लानी होती है genuine किस्म की, कि you know, like I'll give you an example. Like when I knew that I needed to move out of my former home, I did not have any solution or anything. मैंने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया और पैक अप करना शुरू कर दिया और डोनेट करना शुरू कर दिया. About like I would say 8 months before it actually happened. और मतलब जैसे ही मैंने वो सब करना शुरू किया तो बस like wheels in motion, और फिर बस चीजें solutions खुद ब खुद आती चली गई, because you're in the feeling of it. You're like, I know I'm gonna move. I don't know when I'm gonna move, but I know I'm gonna move. It has to happen. So I'm just gonna start selling my stuff in advance to prepare for it. So that's one way. That's beautiful. Yeah. I mean, it was something that I was just trying, and of course, आपको अगर किसी चीज पुरानी चीज की एनर्जी अटकी गई ना आपके साथ, फर्ज करो you're in a relationship with somebody and you want to get out of that relationship and you want to leave, you know, आप अपने साथ जो आपने तस्वीरें खींची हैं उनके पिक्चर फ्रेम्स और you know things that you bought together, हटा दें उनको. Just try it. क्या जाता है, रखना है तो रखो बाद में. Just try it. हटा दो उनको कुछ अरसे के लिए and watch how making that room in your life, how it fills up with the stuff that you want. Because you're making more space for other things. Yes. Yeah. The only other thing I would caution in this is there's something called, we like to call them pendulums. Okay? Pendulums, they are things or subjects or topics that try to take away your attention. यही जो एहसास आप जो build कर रहे हैं, आपका जो focus आ रहा है किसी चीज़ पे, first करो, COVID, for example, is the massive pendulum right now. आपका हर तरीके से fear, anxiety, attention, you know, every possible तरीका. There are other things too, like some people get into like, you know, hobby clubs, or news आती रहती है news पे, you know, फलानी जगह shootings हो रही हैं, ये हो रहा है. तो these are all pendulums that are trying to take away your attention. कोई आपसे कुछ कहता है, you know, बिट्टू तुमने पेंटिंग शुरू किया, माही तुमने कुछ शुरू किया, people are like, क्यों कर रहे हो ये, this is so boring, you know, and you have to be so aware in here कि जो कह रहा है इसको बकने दो, but I am just gonna roll this right off my back, because अगर आप caught up हो जाए उसमें तो आपकी जो एहसास वाइब्रेशन जो बन रही है वो टूट जाती है. And I think lastly I will ask Bittu to answer this at some point, is कि Mahi mentioned कि parents instill purpose in you, ठीक है, और अक्सर ये बहुत अच्छी चीज होती है, but a lot of parents will try to teach us, oh, only worship Allah, ये तुम्हारा मकसद है जिंदगी का. And I'm like, okay, but worshipping Allah and sitting on your ass doesn't help anybody. Right? तो अल्लाह की जिसे कहते हैं अल्लाह की worship, I believe, is in doing for others. So I want to talk about this at some point, but now I'm going to pass the baton to Bittu to explain. So would you like me to answer this? पहले मैं कर देती हूँ माही का. हाँ. Then I'll go. मैं अपना जो experience के through and मैं समझती क्या हूँ. Because माही ने जब ये बात की और मैं यही सोची थी जब माही ये बात करी थी कि पेरेंट्स के थ्रू यू नो में हम स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ लेके जा रहे हैं, कभी यहाँ लेके जा रहे हैं, माँ ये चाहती है हमसे, बाप ये चाहता है, और हमारे सामने एग्जांपल्स आ रही हैं यू नो कि अच्छा इस तरह जीना है, क्योंकि हमारे बाप ऐसा चाहता है, हमारी माँ ऐसे चाहती है. तो उससे मुझे मौला अली का कॉल याद आ रहा था कि उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को अपने तरह नहीं पालो, क्योंकि वो आपकी जनरेशन के लिए नहीं बने.
वो अपनी जनरेशन के लिए बने. So in a very beautiful way, he's very simple words में अगर मैं explain करूँ कि ये कि हम एक वसीला है उनको आगे बढ़ाने के लिए, पालने के लिए, मगर उनको रूल करने के लिए नहीं है. हम अपनी सोच उनके अंदर नहीं डाल सकते, because they are one individual person जो उनका पर्पस के लिए वो आए हैं बनने के लिए, right? तो हम सबसे बड़ी गलती होती है कि हम उनको अपने तरीके से ढाल रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि नहीं तुमने ये बनना है, तुमने ये करना, जो कि प्रेशर में आके, जैसे माही ने कहा कि वाकई डॉक्टर्स बन जाते हैं, मगर डॉक्टर्स में बन के आप खुश नहीं हो. लॉयर बन जाते हैं, लॉयर नहीं है. मेरी वेरी क्लोज फ्रेंड है जो वो इंजीनियर बनी हुई है. इंजीनियर बन के देन शी डिसाइडेड कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैंने नहीं वो काम करना, एंड नाउ शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट. माही नो हर, राइट? So she's a makeup artist and she's thrilled about that because she loves making beautiful, you know, making people beautiful. So she says कि मेरा ये passion है. तो she's अब वो चाहे उसमें अब इतने पैसे नहीं भी हैं निदा, right? जो engineering करके job पे है, वो उन्होंने किया, वो भी किया, but she was not happy. So her life was not fulfilled. अब जाके चाहे वो पैसे कम भी क्यों ना हो, मगर she's happy because that's her passion. She wanted to make beautiful, you know, people beautiful. तो अब वो ये कर रही है. So I think this is what it is. जो मैं ये कह सकती हूँ कि what Mai said and you said कि हाँ कि हम parents को क्या करना चाहिए. Parents को सिर्फ वो काम करना चाहिए जो अपने तरीके से, yes, बेसिक चीजें आप बता सकते हैं बच्चों को. हमारा सिर्फ ये काम है कि हमें बताना है कि this is what it is बेटा, ये सही रहा है, आपने करनी है, आप कर लो, बाकी आपका है मर्जी. हम जब पुश कर देते हैं, स्ट्रेस कर देते हैं, क्यों इतने सुसाइड केसेस हैं, क्यों होते हैं, बच्चे इतने यंग हैं एंड देयर सुसाइड केसेस चल रहे हैं बिकॉज उनको इतना प्रेशर डाल देते हैं कि आपके ये अगर ग्रेड्स नहीं आएंगे, आप एज नहीं डालोगे तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो वो कहते हैं कि ओ माय गॉड अब पता नहीं क्या हो जाएगा, वो सी आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. दिस इज एंड वो चक्रों में वो यू नो देयर सुसाइडल केसेस, यू नो. तो आई थिंक ये प्रेशर डालना और ये करना, हम अपनी जिंदगी को इम्प्लीमेंट करना. कितने लोग मैंने सुना है ये कहते हुए, माँ स्पेशली, कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डांस करूं, मैं डांसर बनूं. अब यू नो आप आते हो, आइडियल में आते हो, तो आप देखो अपने बच्चों को उन्होंने वो अपनी डांसेस क्लासेस में लेके जाते हैं. वो अपना वो जो पैशन है उनका वो बच्चों के थ्रू करते हैं. अब गॉड नोस उनके बच्चों के अंदर है भी वो चीज के नहीं है, बट दे आर डूइंग इट बिकॉज दे वांट व्हाट दे वांट टू मेक देम हैप्पी. दे डोंट नो, दे आर जस्ट फॉलोइंग, राइट? वो उनके पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी पर्पस जो है वो फुलफिल कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. There's also like so many family dynasties. मतलब एक्टर हो तो अपने बच्चों को एक्टर, वो बच्चे एक्टर ही बन जाते हैं. सिंगर्स के साथ भी अक्सर ऐसे होता है. because that's what they see. हाँ, बस देखिए वो हाँ, and there's वेल्स even के like देखो ना, बच्चों के वेल्स इग्नोरेंस के अभी वेल्स पड़े हुए हैं, उन्होंने अपने आप को डिस्कवर नहीं किया. तो वो क्या देख रहे हैं, इफ यू रिमेम्बर द लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि वो किसी और की सूरज देख रहे हैं, किरण देख रहे हैं, राइट? सो वो अपनी तो देख नहीं, क्योंकि उनके तो पर्दे पड़े हुए हैं. सो हाउ दे गोना नो? दे गोना जस्ट फॉलो दैट पाथ, दे गोना फॉलो दैट, चाहे उसमें खुश है या नहीं है, दे जस्ट गोना कीप डूइंग दैट. Go ahead, sorry. No, I was saying, and there are situations जिसमें like you know आपका family business passed down हो रहा है, first करो tailoring या blacksmithing or something like this, and I don't think कि you know we should conflate कि जो आप नौकरी, आपका जो पेशा है, it has to be like your passion and your purpose. Yeah, You can still fulfill your purpose within whatever your job is. Exactly. Yeah, that's why people have so many side things to do. आप एक चीज कर रहे होते हो, but on the side you're doing something else. And बड़ी अच्छी बात की थी निदा अभी थोड़ी देर पहले. You said कि मैं टीचर हूँ. Like you're not, your profession is not a teacher, right? Yeah. करी किसी स्कूल में जाके, but you are a teacher, so wherever you will go, you will do that. You will teach somewhere or the other. You want to teach. तो कुछ ना कुछ knowledge अपने पास cut down कर ही रही होगी. So हम ये समझते कि अच्छा ये हमारा पर्पस है, तो हमने प्रोफेशन में उसमें जाना है. नहीं भी जाओगे तो दैट्स ओके. अब जैसे इसका था, यू नो, माही ने साइड कि मैंने नहीं बनना, मैंने नहीं करना, बट इसका पर्पस था हीलर, राइट? सो शी डिड, शी बिकेम a doctor in a sense कि, you know, अगर आप इस साइड पे अगर कोई देख ले तो yes, the healing, holistic healing is being part of one doctor, you know. आप डॉक्टर ही एक तरह के, आप हील कर रहे हो, मेडिसिन नहीं कर रहे, आप अपनी एनर्जी से हील कर रहे हो, which is Allah's energy, you know, I say. तो you just part, but उसका मकसद ये था. अब जरूरी नहीं है कि वो भी डॉक्टर की फील्ड में जाए और डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठे और जाके, you know, वो करे. So
वो भी काम कर सकती है वहां पे जाके बैठ के, आप कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप साइड पे भी जो आपको है, अल्लाह इज ऑलवेज, क्योंकि एक दफा आपको पर्पस पता चल गया ना कि दिस इज माय पर्पस, तो कहीं ना कहीं से आपके पास वो लोग खुद ही आप अट्रैक्ट करते रहेंगे, और वो आप खुद ही उनको हील करते रहेंगे वो लोग, देन यू आर देयर, यू आर सिटिंग हियर, right? You're समंदर, जैसा मैं last time कहा था कि you're just a ocean, right? The ocean will come. People think people will come. You will attract everything. आपका काम नहीं है सुनामी बन के बाहर जाना, because उससे क्या होगा कि और बाहर निकलेंगी आपके अंदर भी चीजें, वो बाहर निकल के आप, क्योंकि यू आर नॉट इन दैट एनर्जी, आप बस घूम रहे हो, आप नहीं इन स्टेट। आपका ये काम है, once you know आपका ये मेरा पर्पस है, this is it, I am going to be here, and people will, Allah will send people, और यही होता है कि अल्लाह starts sending those people. So अब मेरा शुरू Yes, please. एक तो पहली बात है कि I really want to thank you both कि मैं जब शुरू होती हूँ तो मैं बोलती रहती हूँ, and for that purpose you are there to listen. तो मैंने कहीं किसी का सुना, मुझे इतना प्यारा लगा कि he said कि सुनने वाला कहने वाले से ज्यादा बेहतर होता है, बताने वाले से ज्यादा बेहतर होता है। तो किसी ने पूछा कि क्यों, ये कैसे हुआ, हालांकि नॉलेज दे रहा है तो वो बेहतर होना चाहिए, राइट? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो नॉलेज को सुनने के लिए आता है, ठीक है, अपना टाइम निकाल के आता है, बैठता है, सुनता है, और वो इसलिए सुनता है बिकॉज उसको ये पता होता है कि अच्छा मैंने नॉलेज गेन करनी है, मैंने ट्रुथ फाइंड करना है, राइट? तो मैंने अपना टाइम निकालना है और मैंने बैठना है और उस बंदे को सुनना है। अच्छा, तो जो कहने वाला है उसके पास तो ऑलरेडी नॉलेज होती है, वो तो अपनी कभी क्या ईगो की वजह से भी, ओ मेरे पास ये नॉलेज है, मैं तो शेयर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आई पीपल विल एडमायर मी एंड दिस एंड दैट। सो वो एक ईगो आ जाती है इंसान के अंदर कि वहां पे है, तो मेरे पास नॉलेज है तो मैं दूंगा। सो आई थिंक दैट्स व्हाई मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती और मेरे पास नॉलेज है भी नहीं, मैं यही लोगों कहते मेरे पास नॉलेज नहीं है, मगर जो भी मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने जो छोटा मोटा सीखा है, मैं कहती हूँ किसी को भी, कोई भी सुन के किसी के दिल में एक रेजोनेट कर ले वो बात, और उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो आई थिंक वो काम, आई थिंक वी आर ऑल डूइंग द सेम थिंग यहाँ पे बैठे बैठे, हमारा पर्पस खत्म हो गया उस चीज का कि हमारा पर्पस इज डन। सो थैंक यू अपना टाइम निकाल के सुनने के लिए आना और मेरे साथ मेरी, यही तो पूरी वजह थी इस पॉडकास्ट को शुरू करने की। पॉडकास्ट क्या, वीडियो डायरीज जो भी कह लो, हम ये कहते रहते थे कि बिट्टू कब एक्सप्लेन करेगी इन चीजों को, बट हियर वी आर। सो अच्छा, अब मेरा जो शेयर करने जा रही हूँ ना वो ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस भी ऑफ कोर्स, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ होते हैं मैं वो शेयर करती हूँ। तो मेरा जो वेरी क्लोज ways of finding out is, जो मैंने सर्च किया है वो ये है कि Neo Vedanta's ways, Neo Vedanta's ways are very close to my experiences, कि how I discovered my purpose and how I opened my ignorance के जो ways लगे हुए थे मेरे ऊपर, मैं किस तरह one by one मेरी जिंदगी में वो चीज खुली है, और मेरे सामने अभी भी बहुत से वेल्स पड़े हुए हैं, मैं कहती हूँ बहुत से वेल्स हैं, मगर एटलीस्ट थोड़े बहुत खुलना शुरू हो गए। उससे क्या हुआ है कि नाउ आई एम अट्रैक्टिंग थिंग्स, क्योंकि मैं उस फ्रीक्वेंसी में आ रही हूँ कि जो यहाँ चीजें मैं डिजर्व करती हूँ वो ऐसा ऐसा मैं क्लोजर हो रही हूँ। तो मुझे क्या है कि मैं ऐसा ऐसा, बट द गोल इज टू फाइनली इंशाल्लाह रीच अप हियर। तो वो ये 4 paths आर, नंबर 1 नॉलेज, ठीक है, नंबर 2 डिवोशन, Number 3, selfless service. Number 4, meditation. अब मैं one by one इनको explain करके मैं examples के साथ explain करूँ ताकि better पता चले लोगों को कि why they are very very important to discover and take off the veils of ignorance किस तरह हमारे होते हैं। अब मैं अगर I'll go from the meditation. You were saying कि हाँ meditation के लिए time नहीं होता हमारे पास and everything, so but those are very quick ways of doing it, but at the same time अगर हम meditation को देखें तो meditation ये नहीं है कि सिर्फ बैठना होता है और बैठ के हमने अपने आप को आधा घंटा दे रहे हैं और हम कुछ नहीं सोच रहे और बस हम लगे हुए हैं हूँ करने हु करने अल्लाह हु करने, जो भी आपका क्या करने के लिए आप मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेशन इज कि आप
एवरी सिंगल मोमेंट में अपनी जिंदगी में आप मेडिटेट कर रहे हो, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर बेस्ट वे इज यस टू गो। आप चाहे सोने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 मिनट वो मेडिटेशन अपने लिए अगर आप निकाल लेते हो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज देखो, जितने भी हमारे हमारे प्रॉफिट्स गुजरे हैं, जितने भी बुद्धा बुद्धा को देख लें आप, उन्होंने भी क्या किया था? बुद्धा ने तो मेडिटेशन के अलावा वो कुछ करते ही नहीं थे, वो बैठ जाते थे। हमारे प्रॉफिट्स ने भी क्या किया? हजरत मूसा को ले लें आप, क्या कहते हैं, हजरत यूसुफ को ले लें, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को ले लें, वो भी केव में जाते थे तो वहां पे डेज एंड डेज बैठते थे, तो जाके क्या होता था? उनको अल्लाह से कनेक्शन होती थी, और वो वही आती थी, जिब्राइल आते थे और उनको कुरान के वर्सेस बताते थे कि ये चीज है, कि आप ये बताएं लोगों को, राइट? सो दैट्स वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ ओपनिंग योर वेल्स। अच्छा, दूसरा ये है कि सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस से मुझे याद आता है महात्मा गांधी का एक कोट है, बहुत ही प्यारा। उन्होंने कहा, द बेस्ट वे टू फाइंड वन सेल्फ, best way to find yourself is to lose yourself in the service of others। मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत बात है ये ना, अगर समझ आ जाए कि वाकई में कि हम जब हमें मकसद नहीं पता होता ना कि हमारा क्या मकसद है, यू जस्ट स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। अभी तुमने बात की थी पहले कि नीयत, उन्हें कहा था नीयत होनी चाहिए, नीयत हो, एनर्जी साफ होनी चाहिए। जब हम सेल्फलेसली किसी को मदद करते ना, हमारी नीयत वो फिर हमारी मोटिवेशन के लिए नहीं होती, वो हमारी होता है कि हम उसको किसी तरह हेल्प करते हैं, इसकी भलाई हो जाए हमारी, हम भलाई का अपना नहीं सोच रहे होते, हमारा कोई मोटिवेशन नहीं होती, इसकी भलाई हो जाए किसी तरह, तो वो कर्मा है। सो एनीथिंग यू गिव बैक विल कम बैक टू यू। सो उससे ये होता है कि आपके एक और वेज खुलने शुरू हो जाते हैं, और खुलने शुरू होते हैं। व्हाई? बिकॉज एक सेल्फलेस सर्विस आप कर रहे हो, आप आर यू डूइंग समथिंग गुड, एनीथिंग दैट यू आर गोना डू गुड इट्स गोना कम बैक टू यू। आपके और सूरज जो है वो किरणें आपके ऊपर आएंगी और आपके क्लाउड्स खुलने शुरू हो जाएंगे। देन थर्ड, डिवोशन। अच्छा, अब डिवोशन क्या है? डिवोशन इज लव, डिवोशन इज योर पैशन। व्हाई? कितने लोग जो यंग भी होते हैं, देयर सम किड्स आई हैव सीन जो 7 years ओल्ड के हैं, उन्होंने अपना पर्पस ले लिया, उनको फिगर आउट हो गया कि उनका पर्पस क्या है। एंड देन देयर सम पीपल हु आर 70, उनको अपना पर्पस नहीं पता। बिकॉज वो क्या है कि आप एक चीज को लेके बैठ जाते हो और कहते ये आई लव इट, आई लव दिस थिंग, दिस इज इट, दिस इज फॉर मी, मैंने इस चीज के पीछे पड़ जाना है, मैंने पैशन हूँ, आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस कि मैंने ये चीज बननी है, मैंने करना ही करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस। सो आप लगे रहो, एनीथिंग दैट यू विल डू विद लव, आपके पर्दे खुलने शुरू हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज लव में प्योरिटी है, love में there is nothing else but love। so love is the real truth। आपको अगर real truth में रहना है और आपके पर्दे खुलने हैं, and I think that is like very good way to open your ways, because love मैं कहती हूँ is the biggest highest thing of yourself। उसमें क्या है, जैसे Da Vinci आर्टिस्ट जो हैं उनको ले लें, उनका क्या काम था? कहते थे कि वो हर पल खाना पीना, उनका एक एक चीज जो होता था उसमें भी बैठ के वो सोच रहे होते थे कि मैंने आर्ट कैसे बनानी है, मैंने आज क्या बनाना है, मैंने क्या करना है। उनको कोई सोचे नहीं होती थी, उनका कोई काम नहीं होता था बट आर्ट। तो उनसे क्रिएशंस ऐसी ऐसी निकलती थी, ऐसी ऐसी क्रिएशन थी कि आप देखो उनका कहाँ नाम है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, आपदा परवीन को ले लो, हर पल हर बात उनकी, हर चीज गाने में से लेके गाने से उनका मौला 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 मौला। व्हाई? बिकॉज शी इज सो पैशनेट अबाउट दैट। हर चीज का वो ये कि हर चीज का ले लो आप, उनसे निकलते ही यही है। आई एम सो मच पैशनेट, अगर मुझे ले लो आप, आई एम ऑल अबाउट लव। ये दिस इज माई थिंग, आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट लव। मेरा गोल ये नहीं है कि मैंने किसी को किसको देना है किसको नहीं देना। माई गोल इज नॉट टू गिव लव, माई गोल इज टू बिकम लव। बिकॉज वंस यू आर लव, देन यू डोंट डिसाइड कि who I am going to give it to, ये डिजर्व करता है, ये नहीं करता, ये करता है, ये नहीं करना, इसने मेरे साथ ये बुरा किया, आई एम नॉट गोना गिव दैट लव टू माय, मेरा इतना प्रेशियस लव है। व्हाई? नो, because it's your love, it's you, it's in you, it's instilled in you, so you want to give your love to anyone who's going to come across in your life। I'm so sorry, मेरा
मैं लगाना थी। So while ये अच्छी बात है कि अगर आप किसी से बात भी कर रहे होते ना, तो दूसरे को पता चल जाता है कि if you're genuine or not, if you're the love, because the love energetically goes into the other person and they can feel it कि हाँ यार ये बंदा actually मेरा भला चाहता है. So don't think that the other person is a fool, because everybody has this ability of understanding with their feelings energetically. सबके पास ability है ये, और that's so true. I mean, आप कोई सेल्स पिच करेंगे तो उसको पता चल जाएगा आपके इंटेंशन क्या है. और अगर आप if you go with the म्यूट किया बेटा तुमने अपना. मैंने इसको म्यूट किया है. Oh, that is love. Yeah, I would agree, and I think कि अगर मैं आजकल ही मेरे ज़हन पे काफी like top of the mind है मेरे सर में बात कि some of the people that I just love so much is because they have always only ever met me with love, lot of जैसे कहते हैं तहम्मुल, मोहब्बत और केयर के साथ, और उसमें जीरो एक्सपेक्टेशंस कि अच्छा मैं निदा को अगर अटेंशन दे रही हूँ तो वो मेरे लिए ये करेगी, या उसने मेरी बात नहीं मानी तो, या उसने मुझे मेरी बर्थडे पे कॉल नहीं किया. अब मैं बड़ों की बात कर रही हूँ, एंड उसमें ऑफ कोर्स लाइक तुम लोग शामिल हो कि and sometimes you just meet people where either you or they, like आप अपनी जिंदगी की कहानियां स्पिल कर रहे हैं कि like मेरे साथ ये हुआ, and why am I telling you this stuff I don't even know, and it's because you feel कि भाई ये एक genuine receptive container है, it's a loving container, and it's not going to be thrown back in your face. And we've all made that mistake in life. I for sure have. I used to have friends that I was so close to, but आप उनको जब भी कुछ कहते थे तो वो आप उल्टा जो है आपको फीलिंग एक अजीब सी आती है कि मैं छोटी हो रही हूँ उन लोगों के सामने, मैं बड़ी नहीं हो रही हूँ इन लोगों के सामने. So that's definitely another measure of when you're around someone, like do you feel less than? Because क्या होता है हमारी एनर्जी जो है ना is the first language. हमारी ये जो इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो है ही नहीं है. सो एनर्जी, क्योंकि हम बोर्न ही एनर्जी के साथ हुए हैं, तो हमारी एनर्जी इज द फर्स्ट लैंग्वेज. तो हमें राइट अवे फील हो जाता है कि वो बंदा जेन्युइन है. जैसे माही ने कहा कि फील हो जाता है कि वो जेन्युइनली हमें प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा. थोड़ी सी भी एक आती है फीलिंग कि वो ऑकवर्ड फील कर रहा है तो हमें भी वाइब आने शुरू हो जाती है. यहाँ तक कि टेक्स्ट भी अगर आप कर रहे हो उस बंदे को, उसकी टेक्सटिंग के थ्रू भी आपको फील होने शुरू होता है कि नहीं समथिंग गड़बड़ है यार, यहाँ पे ये बंदा उदास है या बंदा कुछ गड़बड़ है, क्या वो चीज नहीं है. व्हाई? बिकॉज एनर्जी फील हो रही है हमें, राइट. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज कि एनर्जी के आपको लव का आपको पता चल जाता है कि जो कौन जेन्युइन है कौन नहीं है. इट्स बिकॉज ऑफ एनर्जी. इस तरह झूठ भी पकड़ा है. But coming back to what's your purpose and how to find it. I know. So I'll carry on, moving on with that. Now I'm going to go to knowledge. Okay, so that's number 4, जो final है knowledge. Knowledge, मैं कहती हूँ कि is the most important thing to unveil your covers of ignorance. Why? Because उसी के में बात आएगी कि पहले मैं मौला अली का लेके आऊंगी कि उनका पहले था, किसी ने पूछा कि मौला अली आपका क्या सबसे ज्यादा रिग्रेट है उस दुनिया में, सबसे ज्यादा क्या रिग्रेट है. तो उन्होंने कहा कि मेरा रिग्रेट सबसे बड़ा है कि मेरे पास जितनी नॉलेज थी कायनात, दुनिया से ज्यादा कायनात के पास, कायनात से ज्यादा कायनात की थी मेरे पास, और लोगों ने उस तरह क्वेश्चन में से पूछा ही नहीं. उनको मैं बता ही नहीं सका, वो ग्रास्प ही नहीं कर सके वो नॉलेज. तभी उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दुख वहां होता है जो आपको समझ ना सके, जो बंदा आपको समझ ना सके. क्या आप बता रहे हो बैठ के, इतने कितना होगा कि हम अभी बैठे हुए हैं और मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझे बताओगी, मगर मैं सिर्फ अपने ही लेवल, जहां तक मैं अपने आप को मेट किया हुआ है ना अभी, मुझे सिर्फ वहीं तक समझ आएगी तुम्हारी बात, चाहे तुम कोई भी बात कर रही हो. मगर अगर मैं और तुम्हारा लेवल और मेरा लेवल एक ही जैसा है तो whatever you will say I'll grasp right away. So मौला के साथ क्या हो रहा था कि उनके लेवल के लोग मिल ही नहीं रहे थे कि जो वो उनके पास जो था वो नॉलेज उनको बताएं और वो ग्रैस्प कर सके एग्जैक्टली कि वो क्या मीनिंग है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसी तरह आप ले लो मलाला को. अब
अगर आप मलाला की जिंदगी को देखो, मैं कहती हूँ वन ऑफ it's amazing, very inspirational. सारे वो क्यों है, you know why? Because उन्होंने अपनी जिंदगी स्टेक पे लगाई थी. हर एक के लिए आप किसी से पूछो कि आपने क्या अपने लिए, आपको सबसे ज्यादा प्रेशियस है, तो वो इंसान कहता है मेरे लिए जिंदगी है प्रेशियस, राइट? बट फॉर हर वाज नॉलेज. उस वक्त वहां पे लड़कियां नहीं जा रही थी. उन्होंने तालिबान में उन्होंने जो था उन्होंने कहा था कि हम मार देंगे लड़कियों को, मगर शी डिड नॉट गिव अप, शी स्टिल वेंट. तो क्या हुआ कि उन्होंने मारा, still she came out and she said no, I am going to study, मेरा पर्पस ही है, मैंने नॉलेज गेन करना है, I am going to gain knowledge. मुझे नहीं पता why, because नॉलेज से ही आपके पर्दे खुलते सारे. So अब मैं ये नहीं कह रही कि आप इंडिविजुअल ये चीज है, आप नॉलेज तो है नॉलेज से तो आपके पर्दे खुलते हैं, दिस इज द मेन चीज, और कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज्यादा नॉलेज से आपके पर्दे खुलते हैं, ठीक है? बट ये भी नहीं है कि आप बाकी चीजों को इग्नोर पे कर दें कि अच्छा अब ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं. मैं कहती हूँ कि आप अगर कोई पीएचडी करनी है आपने, ठीक है, तो आपको एलिमेंट्री से लेकर सेकेंडरी स्कूल जाके, हाई स्कूल करके, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, बैचलर्स करना, ये सारा करके आप फिर पीएचडी के लेवल पे आते हो. तो अगर आप ये चीजें, मेडिटेशन, सेल्फलेस सर्विसेज, डिवोशंस, वाली सारी चीजें अगर आप खत्म कर देंगे और कहेंगे कि बस मैंने तो शॉर्टकट पकड़ना है, मैंने तो नॉलेज पकड़नी है और मैंने कर लेना है, मैंने पहुंच जाना है वहां तक, वो भी नहीं. मैं इसको इस तरह एग्जांपल दूंगी कि क्यों सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है टू अनवेल आवर इग्नोरेंस. इज कि अगर मैंने बिरयानी पकानी है, मैं बिरयानी किस लिए दे रही हूँ? बिरयानी इज माय थिंग. आई मेक जबरदस्त बिरयानी. उसमें मेरा प्यार भी होता है, उसमें मेरा नीयत भी अच्छी होती है. जैसे भाई कह रही थी, निदा कह रही थी, तो बिरयानी पकानी है. अब मैंने कहा है कि मैंने बिरयानी पकानी है, मेरे पास पॉट भी है, मेरे पास पानी भी है, ठीक है, मेरे पास राइस भी है, मेरे पास चिकन भी है, मेरे पास सब कुछ है, स्पाइसेस भी हैं, मगर मेरे पास क्या नहीं है? अगर आग नहीं है तो बिरयानी नहीं बनेगी. सो आग इज फायर, आग इज नॉलेज, द फायर इज नॉलेज. सो जब तक ये चीज, सो फायर का तो मतलब है कि मस्ट है ना, तो ये तो उसके बगैर तो आप कुछ भी हो जाए, आपने नहीं कुछ करना नहीं है. सो दैट इज मैं कहती हूँ प्राइमरी मीन्स, जो फायर इज प्राइमरी मीन्स, उसके बगैर आपके पास आपके पर्दे खुल ही नहीं सकते, ठीक है? मगर साथ में आपको ये पॉट भी चाहिए, आपको ये पानी भी चाहिए, ये राइस भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए. व्हाई? बिकॉज एट द सेम टाइम आपने अगर बिरयानी पकानी है, सो ऑफ कोर्स यू नीड ऑल दीज थिंग्स. सो आप इसी तरह मेडिटेशन, इसी तरह सेल्फलेस सर्विस, डिवोशन, प्यार, लव, ये सारी चीजें जब तक कंबाइन होके नहीं आपके हाथ में आएंगी, तब तक आप नॉलेज के लेवल तक वहां पहुंच ही नहीं सकते. तो उसके नीचे आग लगेगी, तो ये सारा कुछ आपका पर्पस बाहर निकलेंगे, राइट? सो जब तक आप ये चीजें नहीं है आपके पास, तो आपको अपना रियल पर्पस नहीं, आग लगेगी तो आपका ये सारे पर्दे खुलेंगे और आपको ओह माय गॉड, नाउ थ्रू दिस नॉलेज आपको नॉन ड्यूअलिटी का अपने पता चलता है कि ओके व्हाट इज वननेस, राइट? बिकॉज तब अल्लाह आपको समझता है कि आप काबिल हो गए, कि आपको एटलीस्ट समझ आएगी क्या है क्या, क्योंकि आप उस लेवल पे अब फाइनली हो गए हो ये चीजें कर करके कि अल्लाह आपको समझता है कि ओके नाउ ये बंदा समझ सकता है. तो क्यों इस्लाम में हमें ये कहा जाता है कि जी चैरिटी दो, क्यों हमें रोजे रखने को कहे जाते हैं, क्यों हमें नमाजें रखने को 5 वक्त की कहते हैं? मैम नमाजें क्या है? मेडिटेशन है. अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए 5 वक्त जो है वो मेडिटेशन है. क्यों हमें चैरिटी का कहते हैं? क्योंकि सेल्फलेस सर्विस है, आप दे रहे हो. क्यों हमें कहा जाता है कि आप ये नॉलेज करो, क्या है? कुरान है. क्यों पढ़ने को कहते हैं? बिकॉज कुरान में सब कुछ अल्लाह के वर्ड्स हैं, तो यू आर गोना गेन नॉलेज, राइट? तो इतनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये चीजें. अगर आप इस्लाम में आप रोजे ही क्यों कहते हैं अल्लाह ताला आपको हमें रखने को क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता चले कि भूखे जो दुनिया इतने रह रही है कौम, हम उनको हेल्प करें. और बाकी जितने रोजे में हमें रियलाइज हो रहा था कि ओ माय गॉड हमें भूख लग रही है, तो दूसरे को हम देखते तो हम कहते हैं कि अल्लाह के हम भी किसी तरीके से हेल्प करें, तो हम चैरिटी भी दे रहे हैं, डोनेशन भी दे रहे हैं, हर किस्म की चीज की हम कोशिश कर रहे हैं. तो वो आजकल क्या हो रहा है? आजकल मैं कह रही हूँ कि ये जो कम्युनिटी हो रही है पेंडेमिक की वजह से,
हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में इतनी, मैं आई एम सो प्राउड ऑफ देम बिकॉज दे आर वाकई में गिविंग आउट सो मच groceries, so much money out, you know what, just why? Because उनको realize, क्योंकि वो अपने ऊपर वो भी इसी चीज में फील कर रहे हैं. हम सारी पेंडेमिक वाई ये जो है कोरोना वायरस की फील कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए बिकॉज हम भी उस चीज के अंदर जा रहे हैं. So I think that is why it's so important to realize कि knowledge, devotion, self-service and meditation, जब तक ये आप चीजें नहीं आपके अंदर होंगी, आपके पर्दे खुलना बहुत मुश्किल. और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरी एक्सपीरियंस है. You know, मैंने मेडिटेशन करना शुरू की, मैं भी डिवोशन इतनी ज्यादा, और मुझे कोई भी देखता है वो ये कहता है कि oh my god, you just so like love अल्लाह. Why? Because this is who I am. You know, तो मैं हर चीज को देखती हूँ. नॉलेज मुझे घंटे बढ़ाए जाओ, मैं सुनती रहूंगी. You know, why I love listening to majlis में लोग थक भी जाएंगे मगर मैं इस तरह दूंगी. लोग मुझे कह रहे होते, कहते हैं कि मैं when I notice, you know, you listening to majlis, you know, lectures आप सुन रही थी, literally आपकी इधर उधर टेंशन नहीं जा रही थी, you just listening like that because मेरा पर्पस और कोई नहीं है. मुझे बस किसी तरह कोई नॉलेज मिल जाए मुझे, जिससे मैं awakened हो जाऊं, मेरे पर्दे खुल जाएं. You know, so that's what it is, and I hope थोड़ा सा मैंने इस चीज को जस्टिस दे दी है बताने के लिए. It looks like Mahi has something to say. यार वो हमने लास्ट एपिसोड में एक और भी चीज मेंशन की थी जो आई थिंक वी शुड मेंशन इट टुडे आल्सो, इज दैट जिस तरह आप, अगर आपका कोई पैशन है जो आप दबा रहे हैं, यू नो, थिंकिंग दैट यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, जो आपके अंदर जो आपका पर्पस है वो उसको आप पुट डाउन कर रहे हैं, listen to your friends, ask like 3 or 4 friends कि what do you think I'm good at, what do you think is my good quality, you know. coaches जो हैं ऐसी exercises करवाते हैं आपसे, you know, तो मुझे भी करवाए थे coach ने. Call a friend right now and ask her if I enter the room, how would you feel, or how would you define me or describe me as, you know. एक और मैं remember तो वो discussion. तो आप अपने फ्रेंड से पूछें कि would you think when you see me or you know me, would you think I'm good at, ठीक है ना, and then write it down and then study it, you know. उस पे आप थोड़ा सा तवज्जो दें, उसको देखें कि अच्छा वाकई में मेरी बिरयानी अच्छी है, मैं दुकान खोल लूं या वाकई में मेरी आवाज अच्छी है, मैं गाना गा लूं, या वाकई में मेरी पोएट्री अच्छी है, मैं बुक छाप दूं, या मैं न्यूज़पेपर में देना शुरू कर दूं. कुछ भी हो सकता है. It can be small, but it has an impact on the other person, and if it has the impact, then your purpose is being met. I really agree with that, and only thing I can add to that is जो भी वो चीज़ है, चाहे वो बिरयानी हो, तो खाना पकाना, या singing उस्ताद, या you know, energy work, find your ustad, find that person who will just, and dedicate yourself, by the way. Don't embarrass yourself and embarrass him and insult him or her work by not committing to it, but find an ustad for that one thing that you just know you love. और चाहे उसका career or fireworks वाला, you know, paycheck मिले ना मिले, but commit to that thing. And I say this because ustads have a way of instilling in us a certain discipline, a certain structure, or एक आपके path का तरीका. So for me, my singing teacher, for example, again, I say I feel very blessed with him. He has put me on a path of structure with my singing, but also with my thinking. So what he did for me was, in order to मेरी पूरी आवाज की कैपेसिटी को निकालने के लिए उनको मेरी थिंकिंग को चेंज करना पड़ा, because if you don't remove those blockages out of your mind, तो आपकी सिंगिंग कितने भी आप टैलेंटेड हो वो अटक जाती है, राइट. सो आई नोटिस कि अच्छा वैसे तो मैं ये सिंगिंग क्लास में कर रही हूँ ये चीजें, अच्छा मैं यहाँ पे अपना गर्दन ऊपर करके गा रही हूँ, अच्छा नहीं आई हैव टू टेल माई हेड no, I have the perfect voice.
फिर मैंने नोटिस किया इसका असर, पॉजिटिव असर मेरी जॉब में, इन माय करियर. एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे उसी टाइम फ्रेम में मुझे एकदम से खूब सारी तारीफें मिल रही हैं. मेरा लाइक काफ़ी कॉन्फिडेंस लाइक और एरियाज में आ गया, और आई वाज लाइक आई एम ऑन टॉप ऑफ इट, एंड आई एम लाइक feeling like I've grown a lot in just a month and a half. So ustads have a purpose beyond just what you think you're learning, but find a good one. Don't fall for the shiny, shimmering thing and the fancy price tag and the $12.99.9999 for 5 easy payments of 3,000, whatever the deal is. Find someone who's obscure. What about your master? Your Rauf bhai. Yeah. मैं दूसरों को कंपेयर अगर करती हूँ और उनको कंपेयर करती हूँ तो मुझे क्या पता चलता है. मैं आई वाज टॉकिंग टू बुशरा अबाउट दिस टू, क्योंकि वो भी ऑफ कोर्स क्लासेस ले रही हूँ, यू नो राइट. तो मुझे लगता है कि अच्छा, तो उन्होंने फिर कितना चार्ज कर रहे हैं, यू नो, इज ही चार्जिंग यू टू, और अभी तक नहीं चार्ज किया. तो कहते नहीं, मुझे भी नहीं चार्ज करे वो, राइट. सो आई एम लाइक ओके, अभी तक यू आर नॉट लाइक उनको, यू नो व्हाट, व्हेन इज ही गोना चार्ज, यू नो. तो वो कहते हैं कि नहीं, पहले मैं देख लूं कि मैंने अपना हक अदा कर रहा हूँ सही पढ़ाने में, यू नो, जहां मैं चाहता हूँ वहां तक पहुंच रहे हो, तो फिर मैं हक रखता हूँ उस पैसों को कमाने के लिए, राइट. सो I was like, oh my God, this guy is genuine guy. This guy is a true guru, true teacher. Why? Because he is more than पैसों के लिए नहीं है वो पीछे, कि वो सही पर्पस है, कि वो सिंसियरिटी है, कि वो आपको सही गाइड भी कर सके, क्योंकि वो पैसों के पीछे है ही नहीं, वो आपको अपने पर्पस को चढ़ाने के लिए. दिस इज योर पर, मैं चाहता हूँ कि ये हक है, तुम डिजर्व करती हो, लुक दिस इज वेयर यू बिलोंग. जब वो आप पहुंच जाओगे तो फिर आप मुझे खुद ही अपनी बता देना कि मेरी क्या है. फिर आप कहोगे कि माय गॉड, इस बंदे ने इतनी मेहनत की है मेरे लिए, मैं कहाँ से कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई. तो खुद दिल करेगा पैसे देने का भी. बंदा कहेगा कि यार कहीं से भी पैसे आ जाए, मैंने इस बंदे को पैसे बल्कि अपने ज्यादा दोगी, you know. So that's what it is. This is a true teacher, to find out कि who, you know. बाकी आप होते हैं कि वो पहले जब तक पैसे ना दे दो तब तक आप क्या कहते हैं, ये ना कर दो, वो you know आपको आगे पढ़ाएंगे नहीं, आपको कुछ करेंगे नहीं, because they कहेंगे it's called happy money. Okay, कौन सा money? It's called happy money. Happy money. Deserving money. Yeah, deserving money. He's waiting for the happy money to come. क्योंकि हैप्पी मनी जब आती है ना, खुशी से जब आप देते हैं, वो हलाल मनी है ना, तो उसके साथ उसका जो मजा होता है, to have it with you and then to use it in your needs, उसका कुछ और ही एनर्जी होती है. वो क्योंकि वो हलाल मनी है, यार. क्यों हमारे इस्लाम में कहते हैं कि हलाल और हराम में क्यों इतना ज्यादा, कि हराम के पैसे आते हैं, आपको कभी भी वो खुशी नहीं मिलेगी उन चीजों से. वो आप आएंगे और वो यूं चले जाएंगे, बरकत ही नहीं होगी. हलाल मनी में आपको खुशी भी होगी, आपके पास भी रहेंगे वो पैसे, और उससे और बरकत होगी. So that money is halal money. So वो हलाल मनी कमा रहे हैं बैठे हुए. So I mean, I'm very happy. तुमने अभी जिस तरीके से express किया, that's exactly how I feel about him. And मतलब मैं इंतजार कर रही हूँ कि मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं उनको दूँ. And until then, he's got me wrapped up very tight in a ustad and student bandhan, because मेरी अब जो मेरा जो गोल है is do not disappoint his मेहनत. बहुत मेहनत कर रहे हैं मुझ पे. He doesn't just show up and let me sing and say अच्छा ये नोट ठीक करो, ये लफ्ज ठीक करो. वो बैठ के देखते हैं कि इस लड़की का अंदाज क्या है, इस लड़की का अपना पर शख्सियत क्या है इसकी. जाके मेरी फेसबुक पोस्ट देखेंगे, कहते हैं वहां पे तो तुम हंस रही हो, मेरे साथ सिंगिंग करते हुए क्यों नहीं हंसती हो. Or he will dig into the songs that I like and then find matching songs that work with what I like and what works with my voice. ये कोई 2 minute की चीज नहीं है. Like he's really putting in the effort. So now I will be like most embarrassed if I show up and I've done nothing that he's asked me to do, and I'm just wasting his time, or I'm canceling on him last minute or something. So that would be an embarrassment to myself. Or like that's why I say I prefer कि इंसान का एक उस्ताद होना चाहिए लाइफ में, जो आपको अकाउंटेबल रखे और आपको ये आए बाय शायद जो नॉइज चलता रहता है. Like I know someone, I know plenty of people who go to like therapy, for example. I'm like, yaar, I'm licensed to be a psychologist and a therapist. I've done it.
and it's just like, you know, percolating, and यहाँ से एक noise मच रहा है, वहाँ से वो therapy करा लो. Just find you a teacher who will put you on the path and keep you. And I think सबसे बड़ा जो आपका teacher होता है वो आपका दिल है. Yeah. I really believe your heart is your biggest teacher. You know, like just I mentioned here, yes, you need guides. You need, you know, these are very important क्योंकि आपके एक mentor नहीं होगा तो आप नहीं पहुंच सकेंगे, वहाँ तक नहीं पहुंच सकते. क्योंकि इसलिए teachers के क्यों इतनी ज़्यादा हम उनको value देते हैं. इस्लाम में भी है कि जहाँ उस्ताद हो वहाँ खड़े हो जाओ, उनको इतनी respect हो, उनको, you know, आप, because they're teaching you, they're giving you knowledge, you know. मगर आपका दिल आपको खुद ही guide कर रहा होता है. आपको कह रहा होता है कि अच्छा ये करो, यहाँ जाओ, यहाँ बैठना है, इस बंदे के साथ बैठना है, मैंने ये काम करना है, मैंने नहीं करना, ये नहीं करना तो मैंने नहीं करना, you know, जैसे मुझे कहा मैंने नहीं बनना, you know, so ये आपका गुरु है. दिल आपका सबसे ज्यादा, आपका सबसे बड़ा मास्टर है जो आप उनसे सीख सकते हो. Why? अगर सिर्फ हम उसको सुनना शुरू कर दें. तो बट ये कि ऑब्वियसली हम मिसलीड भी हो जाते हैं. वो कहते हैं कि ओ माय गॉड, हम दिल की सुनो या दिमाग से सुने. हमेशा मुझे लोग कहते हैं दिल की सुने कि दिमाग की सुने, बिकॉज हम बैटल कर रहे हैं दिल एंड दिमाग के. तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि ना दिल की सुनो ना दिमाग की सुनो जब बैटल हो रहे हो, क्योंकि वो दोनों उस वक्त मिस हुए हुए. आपको नहीं समझ आई तो बीच का रास्ता लो, वो है नफ्स, राइट? वो आपकी कॉन्शियस है, आप उसको सुनो. बट दिल से जो निकल रहा है ना वो प्यार है. सो या Perfect. Thank you so much. निदा गाना तो सुना दो थोड़ा सा. अरे गाना, अरे हाँ, चलो तुम लोग हमेशा कहते हो कि जाते जाते एक गाना सुना दिया करो और मैं हमेशा भूल जाती हूँ. I think मेरा ज्यादा इसमें मोटिव होता है. I'm like please मैं इस बहाने सुन लूंगी गाना. चलो एक I'll do one or two pairs from चलते चलते, नहीं एहसान तेरा होगा मुझ पर, जो लता ने गाया था. So let me try that and then we'll close out this episode. So thank you guys for listening. Thank you so much. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने तो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर. तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम ना करो, वो बहते हैं तो बहने तो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर. Beautiful. What a beautiful ending. I love it. I love this ending. I think we should do this all the time. I think let's end with Nida's song. And इस तरह के जो I think हमारी vibration है वो और enhance होके हम बाहर जाएंगे, निकलेंगे दुनिया में. Deal, guys. Thank you for watching, everybody. See you all in the next episode. Thank you. बच्चों का भी उन्होंने wait किया इतना. Bye, guys. All right. Take care, everyone. Thank you for listening. Bye.